Johor Education once again welcome to you the chapter number 6 secondary activities class 12th. In this chapter we'll take on all economic activities. Last chapter I told you about economic activities you generate income is called economic activities. So we have so many sectors in which we generate income. One is primary, one is secondary, one is tertiary and one is quaternary, right? We'll take one by one about this all. Today we will take on secondary, right? We'll take tertiary, quaternary. So if you see, all revolve around one thing, that to obtain resources and how to utilize resources. That's the main aim of all economic activities. Secondary activities like primary activities add value to the natural resources. जैसे प्राइमरी एक्टिविटीज़ अपने रिसोर्सेज में वैल्यू ऐड करती है, उसी हिसाब से like all activities secondary activities also add value to natural resources. एक वैल्यू जुड़ती है आपके जितने नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं. What we are doing in secondary activities, we mainly transform raw materials. हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं रॉ मटेरियल्स को एक वैल्यूबल प्रोडक्ट्स में, राइट? दैट्स द मेन वर्क ऑफ अ secondary industry. That's the main work of secondary activities. Then if you see, we give the example of secondary activities like the cotton which is in the ball has limited use. कॉटन का इस्तेमाल हम नहीं कर पाएंगे. बट इफ़ यू टर्न इन टू ए यार्न, अगर आप उसको धागे में कन्वर्ट कर पाएंगे, देन इट बिकम्स मोर वैल्यूबल, राइट? और बिकॉज ऑफ यार्न ओनली यू कैन मेक ए क्लोथ्स, तभी आप क्लोथ्स बना पाते हैं. So secondary activities, anything which you find in nature like a raw, will not solve the purpose. What solve the purpose? That how value can be added in that. Same is another example that iron ore, एक मिनरल है जिससे आपका आयरन स्टील इंडस्ट्री बनती है, right? So cannot be used directly from the mines. Iron ore you are getting, but you are not able to utilize it directly. But after converting into steel, you utilize it. It has some value. If it is getting raw iron ore, you will not have any value. तो इसीलिए आपको अगर आयरन ओर मिल भी रहा है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है. उसकी वैल्यू तब बनती है जब उसको हम मशीन्स में कन्वर्ट करते हैं या टूल्स बनाते हैं, देन ओनली इट इज यूटिलाइज, अदरवाइज देयर इज नो फन ऑफ आयरन ओर. सेम if you take example, most of the material which we are getting from the farms, जो भी मटेरियल हमें फार्म से मिल रहा है, फॉरेस्ट से मिल रहा है, माइन से मिल रहा है, सी से मिल रहा है, doesn't make sense. But secondary activities are mainly concerned with manufacturing the things. When you manufacture some new thing, some raw material you going to process it, उसको shape बदलते हैं, or something you are constructing. So all these things are related to some industry. Then you have to develop some infrastructure for that. Then we'll take on manufacturing in this first point. What is manufacturing? Why it is important? So whenever we are talking about manufacturing, it involves all the activities of production, from even simple from handicraft to changing iron into steel or some other thing. कोई भी चीज़ का निर्माण करना, उसको हम लोग मेनली मैन्युफैक्चरिंग के अंदर लेते हैं. वेदर इट इज़ सिंपल प्लास्टिक टॉयज़, तो आप सिंपल टॉयज़ की बात कर लें, whether you are taking into delicate computer, all the things are there related to manufacturing. Or if you take space vehicles, छोड़ दे. Mainly in secondary sector, the common characteristic, whatever the characteristics are there, first of all, application of power, because you have to do a lot of the work in it. The application of power is there. Then we have mass production, that's the second main point in this. Then identical products, एक जैसे products का formation होना, that's also there. And then we have a specialized labor who can carry out the work for the production, right? एक जैसे labor का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक जैसा काम वो लोग करते हैं. Then we have standard commodities, क्योंकि आपको एक जैसी commodities को बनाना है. That's the reason why this is the characteristics of secondary sector. So manufacturing may be done with a modern power. अगर आज भी देखें तो हमारी manufacturing mainly that is conducted by power.
क्योंकि उसके बिना काम नहीं चल सकता, मशीनरी भी पावर के साथ ही चलेगी। बट स्टिल वी आर इन इन्फेंसी स्टेज, वी आर वेरी वेरी प्रिमिटिव, बड़े अब भी आउटडेटेड से मेथड से ही हम लोग काम कर रहे होते हैं। मैक्सिमम यू सी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। सो वेन एवर आई एम यूजिंग दिस वर्ड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, तो आई एम टॉकिंग अबाउट दोज कंट्रीज विच आर नॉट डेवलप्ड, राइट? इंडिया भी वन पार्ट ऑफ दैट। मैन्युफैक्चर इन we are just using an infancy term. Manufacturing जो developed countries की है, that is not in developing countries. Then we have, it's very difficult to give a clear cut picture of manufacturing sector. हम लोगों को बहुत मुश्किल है ये पिक्चर देना, खासकर इन कंट्रीज में जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की बात मैं कर रहा हूँ. सो मैक्सिमम इन्फोसिस स्ट्रेस हैज बीन गिवन टू इंडस्ट्रियल एक्टिविटी. कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो इंडस्ट्री से रिलेटेड है, दैट कम्स अंडर मैन्युफैक्चरिंग according to third world countries, right? And it involves less complicated system. इसमें complication बहुत ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि मशीन लगी होती है छोटी सी, and then they are doing some work about it. So that is the things in it. But if you take characteristic of modern large scale manufacturing, क्योंकि आपने छोटे छोटे तो MSME की बात कर ली, माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज की बात कर ली, बट वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट मैन्युफैक्चरिंग इन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, इट हैज़ सम कैरेक्टरिस्टिक्स. इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. व्हाट आर दिस कैरेक्टरिस्टिक? फर्स्ट ऑफ ऑल, अंडर दिस दे नीड अ स्पेशलाइज्ड स्किल्स, मेथड ऑफ प्रोडक्शन. तो अंडर द क्राफ्ट मेथड फैक्ट्रीज दे ओनली प्रोड्यूस फ्यू पीसेस. जैसे आपने एक साइकिल बनाना है, उसका एक छोटा सा टुकड़ा कोई और बनाता है, टायर कोई और बनाता है, ब्रेक्स कोई और बनाता है. सो दैट टाइप ऑफ मेथड इज देयर, दैट इज कॉल्ड क्राफ्ट मेथड प्रोडक्शन, राइट? And then we have mainly, आप लोगों को ये भी देखेंगे कि क्योंकि we are still in primitive stage, so cost is quite high. अभी भी हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें कॉस्ट काफ़ी हाई है, राइट? ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें मास प्रोडक्शन की, जब हम बात करते हैं लार्ज स्केल पे हम प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो वी हैव टू थिंक अबाउट क्वांटिटीज ऑफ अ स्टैंडर्डाइज पार्ट, कि कुछ आपका पार्ट स्टैंडर्डाइज्ड हो, दैट शुड बी देयर. और हर वर्कर एक ही काम करता है, ओनली वन टास्क इज असाइंड टू दैट पर्सन. सो इन दिस मेनली यू सी, क्या जैसे आपका पुराने टाइम में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में था, सो एक जैसे टास्क करना. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड दिस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अगर आप लोग देखें, मैन्युफैक्चरिंग हेयर मीन्स थिंग और एनीथिंग विच यू मेक बाय हैंड, दैट कम्स अंडर मैन्युफैक्चरिंग. वही चीज़ आप हाथ से बना, लिटरली इसका मतलब तो यही होता है, लेकिन अब द कॉन्सेप्ट हैज़ बीन चेंज, राइट? सो वी डोंट इंक्लूड इन मैन्युफैक्चरिंग दोज गुड्स विच आर मेड बाय मशीन्स. हम उन चीज़ों को नहीं लेते मैन्युफैक्चरिंग में, अगर लिटरली जाएँ तो मशीन से बनाई हुई हैं. बट वी डेफिनेटली इंक्लूड दोज प्रोसेसेस जिसमें आप रॉ मटेरियल से फाइनल गुड्स बनाते हैं. तो हम उन चीज़ों को तो ऐड मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं जब आपका रॉ मटेरियल टर्न्स अप इनटू फिनिश गुड्स और ऑफ हाई वैल्यू, और एंड यू आर मेकिंग हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स, राइट? वेदर इट इज़ फॉर लोकल मार्केट, वेदर इट्स फॉर डिस्टेंट मार्केट. तो आप दोनों इस चीज़ों को इन्वॉल्व करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में. सो मेनली अगर आप इंडस्ट्री को डिफाइन करने पे आएंगे, तो व्हाट टाइप ऑफ डेफिनेशन यू आर गोइंग टू गिव इट, तो आप कैसी डेफिनेशन देने की कोशिश करेंगे, दैट विल सी. सो मेनली इंडस्ट्री इज ए जोग्राफिकल लोकेटेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. एक ऐसी जगह पर जो जोग्राफिकल उसको सूट करती है, वहाँ पे लोकेट होती है. एंड दे हैव टू मेंटेन बैंक बुक्स ऑफ अकाउंट्स. तो आपको अकाउंट्स भी बताना पड़ेगा, लेबर को कितना देना है, रॉ मटेरियल को कितना, दैट टाइप ऑफ रिकॉर्ड्स यू हैव टू मेंटेन. दैट्स अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ फॉर एनी इंडस्ट्री, अदरवाइज यू डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, राइट? सो फुल सिस्टम हैज़ टू बी क्रिएटेड बाय मैनेजमेंट, राइट? सो दिस आर सम कैरेक्टरिस्टिक. अगर आप किसी को इंडस्ट्री बोलते हैं तो आपको ऐसी चीज़ें मेंटेन करनी पड़ेंगे. सो टर्म इंडस्ट्री मेनली इफ यू सी दैट्स वेरी कॉम्प्रहेंसिव, बहुत डिटेल में है, और इसका जो इस्तेमाल होता है सिमिलर होता है मैन्युफैक्चरिंग के साथ. इंडस्ट्री की जब भी हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, हमारे माइंड में ये आता है कि दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट एनी इंडस्ट्री, राइट? तो हम लोग ये सोचते हैं कि कोई
इंडस्ट्री की बात हो रही है. सो मैन्युफैक्चरिंग एंड दिस वी ऑलवेज कंसिडर सेम थिंग, राइट. तो हम लोग एक जैसा ही मानते हैं उसको. सो विल टेक इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑलमोस्ट सिमिलर, राइट. हम लोग इन दोनों को बहुत ज़्यादा सिमिलर मानते हैं. Otherwise, if you take example of steel industries, term like steel industry अगर हम लोग यूज़ करते हैं, उसमें मैन्युफैक्चरिंग वर्ड नहीं आ रहा, उसमें इंडस्ट्री वर्ड आ रहा है, राइट. केमिकल इंडस्ट्री, राइट. देन ऑलवेज वी थिंक अबाउट फैक्ट्रीज एंड प्रोसेसेस. तो हम उसमें सोचते हैं फैक्ट्री की बात आ रही है और प्रोसेसेस डिफरेंट डिफरेंट हो रहे हैं, उसकी बात आ रही है. हम लोग ऐसा सोचते हैं. बट देर आर मेनी सेकेंडरी एक्टिविटीज़, लेकिन बहुत सारी ऐसी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हैं जो कैरिड नहीं होती हैं फैक्ट्रीज में, ठीक है. लाइक नाउ वी हैव एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, देर इज़ नो नीड फॉर एनी फैक्ट्री. उसमें फैक्ट्री का थोड़ा होता है. फिल्में बन रही हैं, ये सब कुछ फैक्ट्री में थोड़ा बन रही हैं. सो वी हैव अ टूरिज्म इंडस्ट्री नाउ, इट इज़ आल्सो द न्यू कॉन्सेप्ट विच इज़ कमिंग अप. सो क्लैरिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री शुड बी वेरी वेरी क्लियर. हम लोगों को बहुत क्लियर करना पड़ेगा व्हाट दिस मैन्युफैक्चरिंग मीन्स एंड व्हाट इंडस्ट्री स्टैंड्स फॉर, राइट. सो वन थिंग इज देयर, मैकेनाइजेशन. अब अधिकतर काम हाथों की जगह इंडस्ट्रीज ने ले लिया, दैट टेकन बाय मशीन्स. सो व्हेनेवर आई एम यूजिंग द वर्ड मैकेनाइजेशन, what does it means? That we are using different gadgets. हम कई machines का इस्तेमाल करते हैं, therefore I'm calling it gadgets. So we are using so many gadgets to complete our work. Therefore word accomplish has been mentioned here in it, right. Now we are in the world of automation, and maximum work is carried by machine itself. We are not taking help of human, right. So there is a report from ILO which says if maximum work will be done through automation, then unemployment will rise like anything, right. So mainly now the new trend has been started. Maximum work in manufacturing process is through automation. This is very advanced stage of mechanization. If India like country, we have to think about some we cannot think such things about it, but still some factories are coming which are very very automatic, right. अपना काम मशीन से ही करते रहते हैं. Then there is a feedback, then computer control systems are there, where machines develop to think. Machines अपने आप ही think करती हैं उनको क्या करना है, and they are doing continuously. Even chances of error is there with human, but there are very less chances with machines, right. So that type of process has been carried out throughout the world. So automation सब जगह शुरू हो गया almost. So whenever we are talking about सेकेंडरी सेक्टर, वी ऑलवेज थिंक अबाउट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन. तो हमारे को ये भी देखना पड़ेगा कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी में इनोवेशन भी चाहिए. आपकी जो कंपनियां इनोवेशन करती रहती हैं, नए नए प्रोडक्ट्स के सामने आती हैं, वो सर्वाइव करती हैं, बाकी ख़त्म हो जाती हैं. सो वी हैव टू थिंक अबाउट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, राइट. सो हाउ दिस इनोवेशन कैन बी डन थ्रू रिसर्च. आपको रिसर्च और डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी बनाते रहना पड़ेगा अपनी कंपनी के लिए. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. If you want to maintain good quality of control you want, right. अच्छी चीज़ें बनाना चाहते हैं आप, वेस्ट कम करना चाहते हैं, तभी तो आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा. कि अगर आप एलिमिनेट करेंगे, वेस्ट ज़्यादा नहीं हो रहा तो, और आप इनएफिशिएंसी को कंट्रोल करते हैं. वी वांट टू ब्रिंग मोर एफिशिएंसी इन योर वर्क, and then you have to combat pollution. This is the new trend which you have to think about. Pollution, earlier people were not thinking about that, but now this is a very important aspect for that. So maximum machinery should be that which can reduce your pollution. So then you need organization structure. आपको हायरकी डेवलप करनी पड़ेगी. सो मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग में सबसे बड़ा करेक्टरिस्टिक होता है, वी आर वेरी कॉम्प्लेक्स मशीन टेक्नोलॉजी, राइट. हमारे को बहुत कॉम्प्लेक्स मशीन्स लाई जाती हैं. Special type of specialization is required. Division of labor. कौन सा लेबर क्या काम करेगा, उसको कौन सा स्किल आना चाहिए, दैट इज़ वेरी वेरी स्पेशलाइज्ड, राइट. इफ़ यू आर प्रोड्यूसिंग मोर गुड्स, अगर आप बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं तो, एंड देन वी नीड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल इंडस्ट्रीज कि आपके एफर्ट तो कम लगे और कॉस्ट भी लो हो, तभी तो प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होगा. मैक्सिमम मल्टीनेशनल कंपनीज और वर्किंग ऑन दिस ट्रेंड होंगे, जहाँ पे एफर्ट्स भी कम लगे और लो कॉस्ट लगे, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन इज देयर, राइट.
देन बिग इंडस्ट्रीज नीड वास्ट कैपिटल, पैसे की बहुत ज़रूरत होती है, बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस उनको काम करते हैं. देन वी नीड अ स्पेशल ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स है ये जो उनको रन कर सकें, क्योंकि आपकी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है तो आपको ऐसे ऑफिसर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी जो आपके काम को अच्छी तरह से करवा पाए. You don't think so industry can be set up in a specific area? It's a very uneven. आप इंडस्ट्री बहुत अनइवन एरिया में लगी हुई है. अगर इंडिया के हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं तो वी हैव वेरी अनइवन जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन. सो मेजर कंसंट्रेशन ऑफ, अगर आप मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग का देखेंगे तो that has been flourished in few places. आप ये मत सोचना कि all everywhere it should be balanced type of industry. Everywhere के you cannot set up an industry. अगर आप सोचते आयरन स्टील इंडस्ट्री को पंजाब में लगाना, it's very difficult because we don't have a raw material. We have to bring raw material, then we have to think to set up for that. So it's very difficult. So this is very uneven, right? If industries or manufacturing sector has been located only in 10% of the world area, right? तो सिर्फ 10% एरिया में ही लगा हुआ है, बाकी जगह पे नहीं लगा हुआ. सो द नेशंस विच आर थिंकिंग अबाउट दैट, राइट, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट बिकम द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर. हाउ चाइना इज ग्रोन, सिंपल एग्जाम्पल इज बिकॉज दे आर टोटली इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. तो वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, इसलिए दैट्स द रीज़न, राइट. सो यू हैव टू थिंक इंडस्ट्री एरिया वाइज ऑल्सो, कितने एरिया में आपकी इंडस्ट्री टोटल एरिया में कवर्ड है, राइट. आपको मैन्युफैक्चरिंग साइट्स को भी देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ पर है, और कहीं कहीं पे आपकी जो इंडस्ट्री है वो कुछ छोटे छोटे एरियाज़ में भी लगी हुई है ड्यू टू एग्रीकल्चर, क्योंकि स्टिल इंडिया इज़ अ एग्रीकल्चर कंट्री, राइट, क्योंकि मैक्सिमम पीपल आर स्टिल कैरिंग आउट सेम प्रोसेस. सो इफ़ यू सी अमेरिका, द 2.5 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ अमेरिकन कॉर्न बेल्ट, जहाँ पे कॉर्न उगाते हैं अमेरिका में, और उसमें आपके 4 बड़े बड़े फार्म्स होते हैं और उसमें 10 to 20 वर्कर्स लगते हैं, राइट. और दे आल्सो सपोर्ट 50 to 100 पीपल. तो एग्रीकल्चर इतने लोगों को जॉब देता है इतने सारे में. बट अगर यही एरिया फैक्ट्रीज में हो, छोटे से एरिया में आप यू कैन एम्प्लॉय मैनी पीपल, राइट. अगर आप फैक्ट्री को देखेंगे तो आप छोटे से एरिया में भी बहुत सारे लोगों को जॉब दे सकते हैं. दैट्स अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन दैट. सो वी हैव टू डिपेंड मोर एंड मोर ऑन इंडस्ट्रीज एज कम्पेयर टू एग्रीकल्चर, बिकॉज एम्प्लॉयमेंट रेशियो विल बी मोर, राइट. सो इंडस्ट्रीज कैन मैक्सिमाइज प्रॉफिट. आप इंडस्ट्री प्रॉफिट कैसे अर्न कर सकती है? प्रॉफिट दे कैन अर्न थ्रू रिड्यूसिंग कॉस्ट. तो हर इंडस्ट्री चाहती है कि दे कैन रिड्यूस कॉस्ट बाय समवेयर, राइट. देयरफॉर दे आर ट्राइंग फॉर ऑटोमेशन. दे आर मोस्ट लिविंग इन मशीनरी ऑटोमेशन टाइप ऑफ प्रोसेसेस, ताकि उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़े. देयरफॉर इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड एट दैट प्लेस वेयर दे प्रोडक्शन कॉस्ट आर लेस. ये मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, राइट. जहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट मिनिमम होगा वहीं पे इंडस्ट्री लगाएंगे. दैट्स द रीज़न वाई मैक्सिमम मल्टीनेशनल कंपनीज आर सेटिंग अप इंडस्ट्री अवे फ्रॉम देयर होम, और बहुत दूर दूर लगाते हैं. वाई? बिकॉज दे वांट टू सेट अप इंडस्ट्री वेयर प्रोडक्शन कॉस्ट इज वेरी लेस, राइट. और सो दिस आर सम फैक्टर्स विच आई टोल्ड यू विच इन्फ्लुएंस इंडस्ट्रियल लोकेशन. आप जनरल में भी आप देखें कि व्हाट आर द फैक्टर्स इज पॉसिबल फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्री. तो आपको ये सारे फैक्टर लिखने हैं. आपको लेबर भी लिखना है, आपको पावर भी लिखना है, आपको कैपिटल भी लिखना है, राइट. सो मार्केट यू कैन नॉट लीव. कोई भी चीज़ तब तक नहीं सेटअप हो सकती जब तक आपके पास मार्केट ना हो. मार्केट होगी तभी, देन ओनली यू कैन सेट अप द थिंग्स, राइट. सो एग्जिस्टेंस ऑफ मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर लोकेटिंग एनी इंडस्ट्री, राइट. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मार्केट का एक्सेस होना बहुत ज़रूरी है. मार्केट का मतलब क्या होता है? जब बाइंग एंड सेलिंग होती है, अगर कॉमन लैंग्वेज हम देखें, राइट, the people demand for some goods, and they have also have a capacity to purchase the thing. So whenever you use the word demand covers a lot of aspects. First of all, you should have a capacity to purchase, then you have a desire to purchase it. ऐसा नहीं है desire है, doesn't make thing demand for that, right. So market is a place where demand of a goods is there, but the people should have a capacity to purchase that thing, right. So that's mainly we use the word market for that. तो उनके पास इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए ताकि वो परचेज कर पाए, राइट. देन मेनली सम रिमोट एरियाज इफ यू सी, आपने पॉपुलेशन में भी देखा फैक्टर्स
क्या क्या होते हैं जिसके कारण आपके कहीं पॉपुलेशन लगती है. देन आई टोल्ड यू अबाउट कॉपर माइन. कि ज़ैम्बिया की बात की थी मैंने, राइट. काटंगा की बात की थी. इट्स अ वेरी रिमोट एरिया, बट people start inhabiting those areas where they getting employment. So remote areas are ऐसे एरियाज होते हैं जो खाली होते हैं और इसमें कुछ लोग ही रहते हैं. तो जहाँ पे ऐसा होता है वो तो डिमांड भी तो थोड़ी होगी, क्योंकि थोड़े लोग हैं तो डिमांड भी थोड़ी होगी, राइट. सो दैट्स द मेन प्रॉब्लम विद इंडस्ट्रीज. So mainly they develop some regions of the world which I am mentioning now, like Europe, North America, Japan, Australia, right? So they are number one in industries. They are considered to be developed regions of industries. So they provide big markets because the people having good purchasing power of people is more as compared to developing countries. So that's the reason why markets has been created in these areas, because they have a capacity to purchase the thing. सो मेनली डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स अगर हम लोग देखें जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत है, जैसे साउथ एशिया की बात करें, साउथ ईस्ट एशिया की बात करें, हम फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम की बात करें, तो पॉपुलेशन मोर, सो मार्केट का साइज़ बहुत बड़ा है. दे प्रोवाइड large market to these industries. Some industries are there which we can consider like aircraft industry. Now it is gaining a global market. हर कंट्री एडवांस होता जा रहा है, तो दे नीड एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग. सो देयरफॉर देयर डिमांड ऑफ बोइंग एंड ऑल अदर थिंग्स इज वेरी हाई. एवरी कंट्री नीड्स प्लेन्स. इट्स अ फाइटर प्लेन्स, वेदर इट इज अ पैसेंजर प्लेन, राइट. सो इवन आर्म इंडस्ट्री, डिफेंस के लिए भी आपको किसी को मिसाइल चाहिए, किसी को प्लेन्स चाहिए, किसी को torpedoes चाहिए. So this is also gaining global market, right? Then we have a very important characteristic factor for market, that is raw material. बिना raw material के you cannot set up any industries. So every industry needs some raw material, but it should be cheap. That should be the character. सस्ता होना चाहिए and it should be easy to transport. उसका इजी से ट्रांसपोर्ट होना चाहिए. ऐसा ना हो कि भारी चीज़ है उसको आप एक जगह से दूसरी ले जाने में ही आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम हो जाएगा, एंड प्रॉफिट के बिना तो द पर्पस विल नॉट सॉल्व. सो इंडस्ट्रीज़ का अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो वी हैव सम इंडस्ट्रीज लाइक विच बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल. इट कैन बी चीप, बल्कि इंडस्ट्री, देन वेट लूजिंग मटेरियल, ठीक है. तो जहाँ पे बहुत इंडस्ट्री वहाँ पे लग सकती है जहाँ पे रॉ मटेरियल इज़ वेरी चीप, वेदर इट इज़ बल्की वेदर वेट लूजिंग मटेरियल. तो ये हमेशा सोर्स के रॉ मटेरियल के क्लोजर लगाए जाते हैं, लाइक स्टील इंडस्ट्री. तो जहाँ पे आपको आयरन और मिलेगा, मैग्नीज मिलेगा, कोल वगैरह मिलेगा, देयर यू सेटअप द इंडस्ट्री. लाइक शुगर इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री कैन बी आल्सो सेटअप इन दैट एरिया वेयर यू गेट a raw material, right? So that's it. So then we have सीमेंट इंडस्ट्री. तो सीमेंट इंडस्ट्री भी वहीं लगाई जा सकती है जहाँ पे आपको सारा रॉ मटेरियल मिलेगा. सो पेरिशेबिलिटी, किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना, रॉ मटेरियल जल्दी ख़त्म हो जाता है, सो दैट्स कॉल्ड पेरिशेबिलिटी. इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर इंडस्ट्री टू सेटअप नियर रॉ मटेरियल. अगर आपका कोई ऐसा रॉ मटेरियल जल्दी ख़त्म हो जाता है तो यू कैन नॉट ट्रांसपोर्ट देम टू फ्रॉम हियर टू देयर, सो इट विल बी डिस्ट्रॉयड. So definitely you want to set up industry there near the source only. So we have so many agro processing industries. Agro processing industries वो होती हैं जिसमें agriculture raw material होता है. Dairy products से related industries, they are very close to the source of those areas where farm producers are there, क्योंकि आपको milk produce हो जाएगा, milk supply होने लग जाएगी. That's the reason why we do want to set up the industry, these type of industries near to source area. Then labor is also very important. बिना लेबर के आप कैसे इंडस्ट्री चलाओगे? एवरीवेयर यू कैनॉट सेट अप ऑटोमेशन, राइट. सो लेबर सप्लाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर, राइट. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर लोकेटिंग एनी इंडस्ट्री. देन वी हैव सम टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग्स नीड वेरी स्किल टाइप ऑफ लेबर. हर में सिंपल लेबर से काम नहीं चलेगा. यू नीड समवेयर स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ लेबर विच वी कॉल एज अ स्किल लेबर. सो यू नीड स्किल लेबर फॉर दैट. देन वी हैव टू डिपेंड ऑन मैकेनाइजेशन. आपकी इंडस्ट्री ज़्यादातर मशीन्स में काम करें, राइट. देन यू हैव टू डिपेंड ऑन ऑटोमेशन. टेक्नोलॉजी आपके पास बहुत अच्छी चाहिए और फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए आपके इंडस्ट्रियल प्रोसेस में, राइट. तो आपका लेबर्स पे जो स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा. दैट इज ऑल्सो देयर. देन वी हैव एक्सेस टू सोर्स ऑफ एनर्जी. आपकी इंडस्ट्री बिना एनर्जी के नहीं चल सकती है, तो आपको यू नीड एनर्जी फॉर दैट.
पावर बैक चीज़ें चाहिए। तो इंडस्ट्रीज विच यूज मोर पावर आर लोकेटेड ऑलवेज क्लोज टू द सोर्स ऑफ एनर्जी सप्लाई। वो दूर नहीं हो सकते हैं कि एनर्जी सप्लाई उसको मिलेगी नहीं, इंडस्ट्री चलेगी नहीं। तो मैक्सिमम इंडस्ट्रीज विच आर लोकेटेड, इफ यू सी, दे आर वेरी क्लोज टू एनर्जी सप्लाई, राइट, लाइक एल्युमिनियम इंडस्ट्री। सो आप जितनी भी एल्युमिनियम इंडस्ट्री देखेंगे वो पावर सोर्स के पास में लगी होती है, क्योंकि उनको बहुत सारी पावर चाहिए होती है। स्टिल वी आर यूजिंग कोल एज द मेन सोर्स ऑफ energy, right? But still, because of pollution, because a lot of pollution is created by coal, so we are still depending on hydroelectricity energy, ऐसी energy जो पानी से electricity generate करती है। Petroleum is also very very important source of energy for many years, but now we are using more and more hydroelectricity। तो हम hydroelectricity का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं। And then we have access to transportation। अगर आपने कोई चीज़ बनाई है, अगर आप उसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी इंडस्ट्री नहीं चल सकते हैं। देन यू शुड हैव अ गुड कम्युनिकेशन फैसिलिटी, देन यू नीड ए स्पीडी एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। क्यों चाहिए आपको? ताकि आप रॉ मटेरियल को कैरी कर सकें, कहाँ पर? फैक्ट्री में, और अपना फिनिश गुड्स जो है उसको मार्केट तक भेज सकें, राइट। सो दैट्स then this is very very important essential ingredient for development of industry. Then we have very important this is very important factor for setting up an industry. So transport plays a very important role in location of industry. If you have a very strong network of transportation, then you can set up industry anywhere. And that's the reason why Western Europe, Eastern Northern America, they're very highly developed transportation system, and that's the reason why maximum industries are located in these areas, right? And that was a thing why the concentration of population is also more in this area, because everyone needs a good transportation system। हर आदमी को चाहिए एक अच्छा transportation system हो, right? बिना transportation system के कोई modern industry को सोच नहीं सकता आज के टाइम में। तो both are linked together, therefore transportation is also known as lifeline of any economy, right? So improvement in transportation system ने सारे वर्ल्ड को इंटीग्रेट भी कर दिया है। वर्ल्ड इज जस्ट लाइक ए ग्लोबल वर्ल्ड नाउ एज। सो इंटीग्रेट, दे ट्राई टू इंटीग्रेट ऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एन एरिया, and therefore some regional specialization you also come across due to transportation system. So transportation plays a very important. Then communication is also very important, right? For any industry you need a good communication, that's required. Okay, if you want to give some information and you want to exchange some information, then you need a very strong communication. Then you cannot avoid government policy। आप गवर्नमेंट पॉलिसी को नहीं निगलेक्ट कर सकते। गवर्नमेंट पॉलिसी भी आपके इंडस्ट्री के फेवर में हो तब इंडस्ट्री चलती है। तो गवर्नमेंट आल्सो शुड अडॉप्ट सम रीजनल पॉलिसीज आल्सो। कभी कभी ऐसी पॉलिसीज चलाते हैं, जैसे EEZ का नाम आ रहा है, इकोनॉमिक जोन्स की बात हो रही है। वाई दे गवर्नमेंट अडॉप्ट रीजनल पॉलिसीज? बिकॉज दे वांट अ बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ दैट एरिया। क्योंकि उस एरिया का डेवलपमेंट नहीं हो रहा होता, तो गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी लेके आते हैं ताकि उस एरिया का डेवलपमेंट हो। सो दे ट्राई टू गिव लॉट ऑफ थिंग्स टू द पीपल हु वांट टू सेट अप इंडस्ट्री, राइट। सो स्पेशल एरियाज में अगर गवर्नमेंट ने डेवलप करना है तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर कंट्रोल करती हैं इसमें। सो दैट्स देन वी हैव एक्सेस टू एग्लोमरेशन। छोटी छोटी इंडस्ट्रियाँ इकट्ठी होकर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री को जन्म देती हैं। दैट्स द वर्ड वाई वी यूजिंग एग्लोमरेशन फॉर दैट, राइट। So this is a new concept which is coming up in our modern industry. Many industries, एक इंडस्ट्री सारी चीज़ें नहीं बनाती जो बड़ी इंडस्ट्री है। They take support of so small units of it. So one will be considered as a leader industry, and other industries are supported by that leader industry, right? So these type of industries are called agglomeration economics। जब आपके एक लीडर होती हैं, बाकी छोटे छोटे यूनिट्स उसको सपोर्ट कर रहे होती हैं, देन वी हैव अ बिग टाइप ऑफ इंडस्ट्री, दैट्स कॉल्ड एग्लोमरेशन इकोनॉमिक्स, राइट। एंड सो हियर इन दिस सेविंग्स तो आपकी हो ही जाएंगी जब आपने इतनी सारी इंडस्ट्रियाँ साथ साथ में लगा दी हैं। और उनकी बचत इसलिए हो जाती है क्योंकि दे गेट सेविंग बाय सेटिंग अप स्मॉल इंडस्ट्रीज। बट इफ दे वांट टू सेट अप ऑल द थिंग्स, वेरी डिफिकल्ट। सो दे गिव
chance to small units. So many small units also get a lot of benefit from this. So in this way they can save their money, power, communication, transportation, everything. So this is a very important, this is a new concept by, right? So these all factors are very important for that. Now we have a special type of industry which we call as a footloose industry. ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है footloose industries. It can be located anywhere, any part of the world, right? ये छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं, कहीं पे भी लगाई जा सकते हैं. They don't have to depend on specific raw material. अभी आपने देखा है कि बहुत बड़े बड़े companies they have to depend on some raw material, but these footloose industries are not dependent on a specific raw material. कोई खास specific raw material की ज़रूरत नहीं होती, right? And because they are not losing any weight or otherwise, so they can be set up in any area, right? So mainly they have to depend on component parts which can be easily obtained. That's the reason agglomeration economies are developed in that area. They produce in small quantity because it's small components, small units produce small quantity, and they employ small labor force. So that's the new things which are coming up. These industries, footloose industries, are mainly not polluting industry. They not produce industry, but for India, country like India, these type of industries are required because they not produce polluting. If you take example of most polluted countries, most polluting city of the world, then 14 cities of India are considered the most polluting in it. So we have to set up those industries in coming years which are not polluting. So in this mainly we'll see this industries have its own significance. Then we have main point, that is the important factor of setting up this industry is mainly you should have accessibility by some mode of transportation. तो आपको कोई ना कोई ऐसी accessibility चाहिए जहाँ से आप सामान लेके जाया जा सके. तो road network will also solve the purpose. Now we'll classify the manufacturing industries. अब हम उनके classification देखेंगे industries का, manufacturing industry का कैसे होता है. Mainly if you see classification of manufacturing industries, that is on the basis of size and raw materials. Then we have output products, whatever the products have been produced, then according to ownership. तो हम लोग एक एक करके इसको देखेंगे कैसे कैसे किस हिसाब से क्लासिफिकेशन करना है. पहले हम लोग लेते हैं जो क्लासिफिकेशन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की अकॉर्डिंग टू साइज. Whenever I'm talking it's a big large scale industry, so I'm talking about capital, how much money they have invested in it, कितना पैसा उन लोगों ने उसमें लगाया होगा, कितने नंबर ऑफ वर्कर्स हैं उसमें एम्प्लॉयड हैं, और कितना वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन वो करता है, राइट. दैट डिटर्मिन द साइज ऑफ इंडस्ट्री. वो फैसला करता है कि आपकी इंडस्ट्री बड़ी है कि छोटी है, और उसी हिसाब से आपकी इंडस्ट्री को क्लासीफाई किया जा सकता है, कितना पैसा लगा है, कितने लेबर है, कितना वॉल्यूम आप चीज़ों को प्रोड्यूस करते हो. तो दैट कैन बी क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू दिस इस हाउस होल्ड इंडस्ट्री, जो घर में छोटे मोटे काम होते हैं, कॉटेज, इसको कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी कहते हैं. इंडिया की जो रीढ़ की हड्डी है वो कॉटेज इंडस्ट्री है. देन वी हैव अ लार्ज स्केल इंडस्ट्री, राइट. सो यू नीड लॉट ऑफ वॉल्यूम ऑफ money, lot of capital you need for that, so much labor is required for that. So mainly for setting up large scale industry you need a lot of things. So here this is a classification chart they have given. So they have according to size they classify industries on the basis of size, cottages, small scale industry. So many artifacts जो हम लोग, हर शहर का कोई ना कोई अपनी स्पेशलाइजेशन होती है. कोई मूर्तियाँ बनाता है, कोई पत्थरों से कुछ चीज़ बनाता है. सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी हो सकते हैं. तो जो 5 करोड़ रुपए तक इंडस्ट्री जब कैपिटल लगा हो तो वी कॉल्ड इज अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दैट more than 5 crore it's always a large scale industry, right. Then we have another type of industries on the basis of raw material. रॉ मटेरियल के हिसाब से इंडस्ट्री को अगर हम क्लासीफाई करें तो वी हैव एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, राइट. तो हमारे पास एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है. देन वी हैव like agro based industry, if we have example like sugar and edible oil. Then we have mineral based industries. Mineral based industries are again divided into so many industries, like we have metallic and non metallic industry and mineral industry. तो आपकी जिसमें मेटल हो वो मेटालिक इंडस्ट्री होगी, और जिसमें नॉन मेटल हो
वो आपकी नॉन मेटालिक होगी। तो मेटालिक इंडस्ट्री इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स, वन इज फेरस एंड वन इज नॉन फेरस। फेरस इज दैट इन thing which where you get iron. Non-ferrous is that where you don't get any iron in that. So metallic industry is again divided into two parts, right? So iron steel industry is part of a ferrous industry, and non-ferrous industry mein we have mainly copper industry, aluminum industry, gems and jewelry also comes in it, because यहाँ पे ferrous नहीं होता, right? Then we have non-metallic में we'll consider सीमेंट एंड पॉटरी इंडस्ट्री। ठीक है, तो आपका चार्ट ये बुक में बना हुआ है, दैट यू गो थ्रू इट वेरी केयरफुली, राइट? आप ध्यान से देखें इसको। और मेनली अगर हम थर्ड पार्ट पे आते हैं तो वी हैव सो मेनी इंडस्ट्रीज अकॉर्डिंग टू रॉ मटेरियल। वी हैव केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज, तो केमिकल जिसमें इस्तेमाल होता है तो वी हैव पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, प्लास्टिक इंडस्ट्री, सिंथेटिक इंडस्ट्री, फाइबर इंडस्ट्री, सॉल्ट इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्रीज है, राइट? सो फॉरेस्ट बेस भी होती है, रॉ मटेरियल के हिसाब से इंडस्ट्री लगती है। तो टिम्बर जहाँ से लकड़ी मिलती है, आपको लाख मिलता है, विच मेनली वी आर यूजिंग फॉर सील इंडस्ट्री, राइट? देन वी गेट इट टार्पेंटाइन, पेपर इंडस्ट्री, और उसके बाद हमारा मेनली आता है एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री। सो एनिमल से भी हम लोग सेटिंग अप इंडस्ट्री करते हैं। आगरा इज फेमस फॉर लेदर इंडस्ट्री, राइट, इन द वर्ल्ड। व्हाई इज इट सो? Because leather is easily available. Then wool industry is also there. Then we have another industry which we call it according to output wise. अगर हम देखें production wise देखें तो we have one industry is called basic industry. तो हम एक एक करके बाद में बात करेंगे। उसमें आयरन स्टील आती है। Then we have consumer goods की इंडस्ट्री होते हैं। तो कंज्यूमर इंडस्ट्री में हम लोग देखेंगे कि we have बिस्किट्स, टेक्सटाइल, व्हीकल्स। देन वी हैव ओनरशिप के हिसाब से अगर हम लोग देखें, साइज के हिसाब से देखें, तो मेनली वी हैव थ्री मेन सेक्टर्स इन विच वी डिवाइड इंडस्ट्री। वन इज कॉल्ड पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, तो हमारे पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री है विच आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री वी हैव, देन वी हैव जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री, राइट? तो हमारे पास जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री भी है इसमें। तो ये आपका थोड़ा सा एक चार्ट है, इसको ध्यान से आप लोग देखना। यू गेट एन आइडिया फुल चैप्टर हाउ वी कैन क्लासीफाई। एक क्वेश्चन आप लोगों का बोर्ड में इससे रिलेटेड आता है, तो दैट यू हैव टू बी इंश्योरिंग अबाउट इट, राइट? Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.